I hope I am audible to you. 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 Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly. Good evening to all. Good evening to all. Good evening to all. I hope I am audible to you clearly right now. So today we are going to see the part remaining from your anti-cancer drugs. Actually, this anti-cancer drug is a huge topic and it will require at least 5-6 lectures. So we have already seen cell, from HAP point of view. We have already seen tissues from HAP point of view. We have already seen anti-cancer drug part 1. So in that we have seen the introduction of anti-cancer drugs. We have seen introduction of anti-cancer drug, and we have seen classification also. So we'll see the remaining points from your we'll see the remaining point from anti-cancer drugs, right? So everybody please come live and share this link to your friends, right? So I hope I am audible you clearly. I hope I am audible you clearly and you are able to see the screen properly. Everybody please join fast. Everybody please join fast. I hope I am audible you clearly. I hope I am audible you clearly and you are able to see the screen properly. Sound आ रहा है आपको proper? Please let me know once. Are you getting my voice clearly? Are you getting my voice clearly? Are you getting my voice clearly? Please let me know once so that I can start. Am I audible? Am I audible to you? Are you getting my voice clearly? Everybody please join. Everybody please share this link with everybody, please join. I hope I am audible to you clearly. So next we'll see anti-cancer drugs. We have already started with the anti-cancer drugs. So drugs used in the treatment of tumor or neoplasm or cancer, right? So anti-cancer drugs, they are also known as an anti-tumor drug or anti-neoplastic drug or cytotoxic drug. These three are the synonyms for all these anti-cancer drugs, right? So we'll see. We have already completed what I mean by cancerous cell, what is the basic difference in the normal cell and cancerous cell. We have already seen how antibiotic or antibacterial drugs, they are specific in nature. So antibacterial drug, antibiotic drug, they will kill only foreign microorganism, not the host cell. तो एंटीबायोटिक्स जो एंटीबैक्टीरियल ड्रग है वो सिर्फ इन्फेक्शंस और इन्फेक्शियस सेल को ही किल करेंगे, ना कि आपके होस्ट सेल को. बट एंटी कैंसर ड्रग क्या करेंगे? दे विल किल द कैंसरस सेल एज वेल एज normal host cell. So you cannot kill the cancerous cell without affecting the normal cell. We have also seen the cell cycle. Okay, so some drug will act on a specific cycle of cell. They are known as a cell cycle specific drug. Some drug will not act on a specific cycle of cell, known as a non-cell cycle specific drug. We have already seen these things. What do you mean by carcinoma? What do you mean by sarcoma? We have seen the normal cell cycle or proliferation, right? We have seen all these things. So we have seen main role of, okay, there are two main enzymes known as the topoisomerase 1 and topoisomerase 2 that has an important role in the cell DNA replication. Then there are two factors. One is known as the positive factors. So positive factor means those which stimulate the cell differentiation. So positive factor is nothing but the kinase, that is a cyclidine dependent kinase, and negative factor is nothing but the tumor suppressor gene known as a P53 gene. So there are two factors basically. एक होता है positive factor which will stimulate the cell division, एक होता है negative factor that will suppress the cell division.
तो सेल डिवीजन स्टिमुलेट करने वाला है साइक्लिडीन डिपेंडेंट काइनेज नोन एज अ सीडीके, also known as a CDK, cyclidine dependent kinase, right? And second होता है suppressor or which is a negative factor known as a tumor suppressor gene or p53 genes. So if there is an imbalance between these two, there is a cancer. We have seen apoptosis. What are the reasons for cancer? Reasons for cancer is nothing but the abnormal growth factor functioning, abnormal CDK functioning, abnormal DNA synthesis, or DNA damage due to mutation, abnormal decrease in the negative regulatory force due to mutation, like, you know. So lot of factors are there for cancer. So we have seen the classification of these drugs also, right? So cell cycle specific drug, cell cycle non specific drug. तो क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार आ चुका है, सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग. तो इसके ऊपर कम से कम 2-4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं. So you have to understand this cell cycle specific, cell cycle non-specific, right? Now after that we have seen the classification also. Again I would like to revise classification. तो पहला क्लास होता है alkylating agent, and in the alkylating agent, so they will cause alkylization, means they will cause addition of methyl or propyl or radicals, some radicals to the DNA के इसमें radical add करेंगे, and that's why faulty DNA synthesis will take place, and that result in the cell lysis. Okay, okay. So in that you have nitrogen mustard like meclorothamine, cyclophosphamide, melphalan, uracil mustard, chlorambucil. Second इसमें आता है ethylene amines. So in that you have thiotepa, that is a triethylene thiophosphoramide, ethylene amines, right? Third class में alkyl sulfonate, example is busulfan. Antimetabolite, second class major होता है antimetabolite. So antimetabolite means they will prevent the metabolism. So antimetabolite they will prevent something, they will prevent some metabolism. How? Some will act as a folic acid antagonist, some are the purine antagonist, some are the pyrimidine antagonist. तो ये folic acid antagonist में methotrexate, pramtrexate, ये 2 ड्रग आते हैं. प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6 मार्कोप्टोप्यूरिन, azathioprine, ये ड्रग है ना, ये ड्रग आते हैं, अपने देखा है ये कल, राइट? तो इन द pyrimidine antagonist you have 5-fluorouracil cytosine arabinoid, that is known as cytarabine, and fluorodeoxyuridine. Then radioactive isotope में आता है radioactive gold, radioactive phosphorus, radioactive iodine. ठीक है. बाद में cytotoxic antibiotics में आता है पूरा anthracyclines, जिसमें आता है actinomycin D, mitomycin, doxorubicin and rubidomycin. Good evening. Okay. Then cytotoxic antibiotic हो गए. एंटीमाइटिक प्लांट प्रोडक्ट में आता है आपका विंका अल्कोलाइट, कैम्पोथिकेन, इटोबोसाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हार्मोनल एंड हार्मोनल एंटागोनिस्ट में पूरे हार्मोन, मतलब जितने भी है ना फीमेल हार्मोन है, जितने मेल हार्मोन है, वो सब प्लस उनके एंटागोनिस्ट प्लस उनके मॉड्यूलेटर्स. तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ना, उनके मॉड्यूलेटर अपन देखेंगे. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में ट्रास्टोजुमैब, रेतुक्जुमैब एंड इमिटिनेब, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करते हैं. बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आता है इंटरफेरॉन बेसिस वैक्सीन लेवंसुल. मिसलेनियस में आता है आपका हाइड्रोक्सीयूरिया, ठीक है. बाद में आता है एल एस्परजिनेस को आप एंजाइम भी बोल सकते हो. एल एस्परजिनेस इज एंजाइम. दिस प्लाटिन इज अ प्लाटिनम कंपाउंड एंड ट्रिटिनोइन इज अ कैरोटिनॉइड. ठीक है. सो वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन. सो एंटी कैंसर ड्रग्स बेसिकली दे आर क्लासिफाइड. ये क्लासिफिकेशन मैं रिपीट ले रहा हूँ, क्यों? बिकॉज क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट. लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड फ्रॉम क्लासिफिकेशन. So I am repeating it. So anti-cancer drugs, they are classified into majorly, there are different classes of anti-cancer drugs. So cytotoxic drug, those called toxicity to cell को kill करने वाले drug cytotoxic drug, right? So in that first alkylating agent, in alkylating agent you have different classes. In the alkylating agent you have nitrogen mustard, ethylene amine, second class. Third class is alkyl sulfonate. Fourth class is a nitrosurea. Fifth class is a triazine derivative, and sixth class is a methyl hydrazine derivative. So nitrogen mustard, in that meclorothamine, cyclophosphamide, ephosphomide, chlorambucil and melphalan. तो ये ड्रग है, we have already seen. Okay. So in the ethylene amine, thiotepa is there. Alkyl sulfonate में आता है busulfan, नाम याद रखना पड़ेगा आपको, है ना. नाइट्रोसूरिया में आता है कार्मस्टिन, लोमस्टिन, है ना. ट्रायाजिन में आता है डाइकार्बाजिन एंड
टेमोजोलामाइड, मिथाइल हाइड्रोजन में आता है प्रोकार्बेजिन, राइट. So second class is cytotoxic drug known as a platinum compound or platinum derivative. So in that carboplatin, cisplatin and oxaplatin, right. Then antimetabolite में आता है आपका, there are three classes in the antimetabolite. So first one is a folic acid antagonist, so methotrexate and pemetrexate, methotrexate and pemetrexate. Purine antagonist में आता है, मतलब प्यूरिन क्या है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है डीएनए आरएनए में, उसमें प्यूरिन pyrimidine बेसिस होते हैं, known as the nucleotides. So these nucleotides are nothing but the substituted nucleotide which are analog of your or antagonist of your normal nucleotide. तो जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड लगता है डीएनए के लिए, इनकी जगह पे ये जाके बैठेंगे और वो डीएनए फॉल्टी बनाएंगे और डीएनए लाइसिस होगा, है ना. 6 मार्करप्यूरिन, 6 थायोगोनिन, आइसोथायोप्यूरिन, फ्लूडाराबिन. देन pyrimidine antagonist जो होता है 5 फ्लोरोसिल, सिटाराबिन एंड कैपेसिटाबिन. So we have already seen this classification yesterday, but I am repeating it. So again you can see the classification known as a anti-cancer drug or cytotoxic drug class 2. So in that, those drug which damages the microtubule. जो microtubule होता है, जब माइटोसिस होता है तब microtubule formation होता है, spindle formation होता है. So some drugs they will damage the spindle formation and affect the mitosis. तो इसमें आता है vinca alkaloids. So in that vincristine, vinblastine and vinorelbine. So vincristine is known as a oncovin. Second आता है taxanes, taxane में paclitaxel, docetaxel, and third आता है istramustine, है ना. Istramustine actually it is a, है ना, nitrogen mustard derivative plus estrogen. It is a combination of two drug. इसमें estrogen होता है, estrogen मतलब हार्मोन होता है, estrogen and plus mustine होता है, मतलब क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, मस्टिन. तो इसमें देखो एस्ट्रोजन प्लस मस्टिन, एस्ट्रामस्टिन. तो इसमें दो ड्रग आता है, एस्ट्रोजन प्लस मस्टर्ड. देन सेकंड टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. तो मैंने कल बोला था आपको, याद रखना है, इटोपोसाइड, टेनोपोसाइड एंड इटोपोसाइड, दे आर नोन एज टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर. टोपोआइसोमरेज का रोल होता है, देखो डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, सो देयर इज सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए एंड टोपोआइसोमरेज 2 विल रिलीव द सुपर कॉइलिंग. तो साइड में क्या आता है, साइड दो होते हैं, इसलिए टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर कौन है, इटोपोसाइड एंड टेनोपोसाइड. टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर कौन है, टेकेन्स. सो टोपोटेकेन, इरेनोटेकेन, दे आर द टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर. एंटीबायोटिक कौन है, साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक. तो या कल मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बोला था कि मुझे ABCD आता है, तो मुझे मतलब क्या है ना, मुझे मतलब मीटो, मुझे मतलब मीटो, है ना, मीटो फॉर मुझे में का जो यम आता है, यम मिटोजेंट्रोन. ABCD आता है, A फॉर एक्टिनोमाइसिन, D है ना, B फॉर प्लियोमाइसिन, C फॉर मिटोमाइसिन एंड D फॉर डॉक्सोआनी डाउनोरोबिसिन एंड E फॉर इपिरोबिसिन. मतलब मुझे ABCD आता है, मुझे ABCDE आता है, मतलब मुझमें का यम जो है दैट इज अ मिटोट्रोक्सोन, है ना, मिटोजेंट्रोन में का यम मतलब मुझे, है ना. ABCDE आता है, ABCDE मतलब एक्टिनोमाइसिन D, B मतलब ब्लियोमाइसिन, C मतलब मिटोमाइसिन C एंड D मतलब डॉक्सोरोबिसिन डाउनोरोबिसिन एंड E फॉर इपिरोबिसिन. ठीक है. तो मिसलेनियस में आता है आपका हाइड्रोक्सी यूरिया, येलो एस्परजिनेस, है ना. तो हाइड्रोक्सी यूरिया, देन येलो एस्परजिनेस, ट्रिटिनोइन एंड आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड. ठीक है. तो ये नाउ थर्ड भी देखा है आपने, थर्ड एंटी कैंसर ड्रग्स. सो देर आर नोन एज अ टारगेटेड ड्रग एंड हार्मोनल ड्रग. तो पहली कैटेगरी में क्या आता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग 1. तो उसमें है ना अल्कलाइटिंग एजेंट एंड प्लैटिनम कंपाउंड, देन उसके एंटीमेटालाइट. सेकंड इसमें क्या आता है, सेकंड क्लास में आता है आपका माइक्रोट्यूबुल डैमेजिंग एजेंट, टोपोआइसोमरेज इनहिबिटर्स, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स एंड ये. थर्ड क्लास में आता है आपका, मतलब थर्ड मेजर क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, उसमें आता है टारगेटेड ड्रग्स एंड हार्मोनल ड्रग. जो क्लास 1 वाले ड्रग है, जो क्लास फर्स्ट में, जो मतलब साइटोटॉक्सिक ड्रग क्लास 1, तो उनको एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कॉमन एडवर्स इफेक्ट मैंने बोला था. बट टारगेटेड ड्रग्स विल नॉट हैव दोज कॉमन एडवर्स इफेक्ट. टारगेटेड ड्रग है, उनको वो कॉमन एडवर्स इफेक्ट नहीं होगी. तो इसमें आता है टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स, है ना, इमाटिनिब, निक्लोटिनिब, देन इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर इनहिबिटर. तो इसमें आता है जेफिटिनिब, इरलोटिनिब एंड सेतुबटिनिब. ठीक है.
हेलो हेलो, ठीक है। देन एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर्स में आता है सुनिटिनिब बिवासिजुमैब, है ना, सुनिटिनिब बिवासिजुमैब, ये एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर में आता है। एंजियोजेनेसिस मतलब इनर लेयर ऑफ ब्लड वेसल, है ना। प्रोटियोजोम इनहिबिटर में आता है बोर्टेजुमेब, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में रितुक्जिमैब, ठीक है। बाद में आता है आपका हार्मोनल ड्रग्स, बाद में आता है हार्मोनल ड्रग्स। हार्मोनल ड्रग्स में देखो सभी आएंगे आपकी फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन एंड उनके एगोनिस्ट, सॉरी उनके एंटागोनिस्ट एंड रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। तो ये इसमें देखो आप यहाँ पे पहला दिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आता है आपका प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन, ना, प्रेडनिसोलोन, ट्राइमसिनोलोन वगैरह, है ना। बाद में ईस्ट्रोजेंस में इथाइल ईस्ट्राडायोल एंड फॉस्फेस्ट्रॉल, है ना। ये फॉस्फेस्ट्रॉल क्या है, इट इज अ ईस्टर डेरिवेटिव ऑफ ईस्ट्राडायोल, ठीक है। सिलेक्टिव, है ना, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, उसमें आता है आपका टैमोक्सिफेन एंड टोरेमीफेन, टैमोक्सिफेन एंड टोरेमीफेन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इसके ऊपर डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। देन नेक्स्ट इसमें हार्मोनल में आता है क्लास, है ना, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन डाउन रेगुलेटर, तो इसमें फुलविस्ट्रान, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है फुलविस्ट्रान। एंड एरोमेटेज एंजाइम होता है जिसमें सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉइड्स, जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है एरोमेटेज एंजाइम। सो एरोमेटेज एंजाइम इनहिबिटर, बिकॉज ये हार्मोन्स कभी कभी बढ़ जाते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर में, जैसे मैंने बोला है आपको। सो हार्मोनल ड्रग्स दे आर मोस्टली यूजफुल इन द व्हाट टाइप ऑफ कैंसर, दे आर मोस्टली यूजफुल इन द ब्रेस्ट कैंसर, endometrial cancer, cervical cancer, and then also they are useful in the your prostate cancer। जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें मोस्टली फीमेल हार्मोन यूज किए जाते हैं, है ना। तो लाइक वाइज दैट, बिकॉज ये एरोमेटेज इनहिबिटर में एग्जांपल आता है लेट्राजोल, एनेस्टाजोल एंड एक्सट्रीमिस्टिन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ये पूरे के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। देन एंटी एंड्रोजन मतलब एंड्रोजन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये फ्लूटामाइड एंड बाइफ्लूटामाइड। देन 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर में आता है फिनास्टिराइड एंड ड्यूटास्टिराइड, इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये एग्जांपल ही पूछा है, मतलब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर, तो स्टेरॉइड्स वाले जो है स्टेरॉइड, है ना, STERID 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, तो है ना। रिडक्टेज यहाँ पे ऐसे याद रखना है आपको, रिडक्टेज, रिडक्टेज और स्टेरॉइड, है ना, रिडक्टेज और स्टेरॉइड, इसमें थोड़ा सा कॉमन आता है प्रोनाउंसिएशन, right? Then growth hormone, gonadotropin releasing hormone analog, तो gonadotropin releasing hormone, इसका नाम क्या है, gonadotropin releasing hormone। तो gonadotropin releasing hormone में रिलीजिंग में काम क्या आता है, रिलीजिंग में एक देखो रिलीज 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 ऐसा बोल के देखो, रिलीज मतलब उसका सिमिलर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, gonadotropin releasing hormone का सिमिलर रिलीजिंग में तो रेलिन आता है, इसमें देखो रेलिन एंड रिलीजिंग दे आर नथिंग बट साउंडिंग सेम, तो इसमें एग्जांपल क्या रहेंगे, रेलिन्स, नेफारेलिन, लुप्रियोरेलिन, ल्यूप्रोरेलिन, देन ट्राइप्टोरेलिन, नेपारेलिन, ल्यूप्रोरेलिन एंड ट्रिप्टोरेलिन। तो रेलिन क्या है, रेलिन आर नथिंग बट द gonadotropin हार्मोन रिलीजिंग एनालॉग, gonadotropin रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग रेलिन्स। देन प्रोजेस्टिन में आता है हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टिन एंड अदर्स, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दिस क्लासिफिकेशन। चलो और एक बार देखते हैं डिफरेंट बुक में से क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। तो पहला है आपका अल्कलाइटिंग एजेंट, मेजर क्लास क्या है आपका अल्कलाइटिंग एजेंट, इसको ही बोलते हैं, है ना, ट्रेडिशनल। सो अल्कलाइटिंग एजेंट में आता है फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो इसमें आता है मेक्लोरेथामाइन, है ना, मेक्लोरेथामाइन, देन साइक्लोफॉस्फेमाइड, है ना, क्लोराम्ब्यूसिल, आईफॉस्फेमाइड एंड मेलपरान, इसको ई फॉस्फेमाइड भी बोलते हैं या फिर सिंपली फॉस्फेमाइड भी बोलते हैं, क्योंकि आई साइलेंट भी होता है कभी कभी, फॉस्फेमाइड, है ना, फॉस्फेमाइड। एग्जांपल्स याद रखना है आपको अल्कलाइटिंग एजेंट्स में, अल्कलाइटिंग एजेंट नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो एग्जांपल्स है मेक्लोरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, देन, है ना,
ईफॉस्फेमाइड मेलफलान. देन इथिलीन इमाइंस का एग्जांपल है. एग्जांपल क्वेश्चन में आता है अल्काइल सल्फोनेट एग्जांपल ब्यूसल्फान, नाइट्रोसोडिया कार्मास्टिन, स्टेप्टोरोसिन, ट्रायाजिन डेरिवेटिव डाइकार्बेसिन, राइट. सो दिस ओके. देन सेकंड मेजर क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग एंटी मेटाबोलाइट. तो इसमें फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है, एग्जांपल मिथोट्रेक्सेट, प्रामटेक्सेट. प्यूरिन एंटागोनिस्ट है 6 मार्कर टू प्यूरिन, थायोगोनिन, एसिथायोप्यूरिन, पेंटोस्टैटिन, देन फ्लुडाराबिन एंड क्लैट्राबिन, ठीक है. देन पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट में आता है 5-फ्लोरोयुरासिल, है ना, 5-फ्लोरोयुरासिल, फ्लुक्सोयूरिडिन, देन साइटाराबिन एंड जेमसिटाबिन. तो पिरिमिडिन एंटागोनिस्ट में क्या आता है 5-फ्लोरोयुरासिल, है ना, फ्लुक्सोरिडिन, देन साइटाराबिन एंड जेमसिटाबिन, राइट. देन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आता है आपका पूरा एंथ्रासाइक्लिन्स, जैसे एक्टिनोमाइसिन डी, मिथ्रामाइसिन सी, डॉक्सोरोबिसिन, डाउनोरोबिसिन, मिटोमाइसिन, है ना. देन इपिपोडोफाइलोटॉक्सिन्स, इसमें आता है एटोपोसाइड, टेनापोसाइड. कैम्पोथिकन में आता है टोपोटिकन एंड इरिनोटिकन. टैक्सेंस में आता है पैक्लेटेक्सेल एंड डोसेटेक्सेल. विनकाल्कुलाइट्स में विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोर्लिबी, ठीक है. मिसलेनियस में आता है आपका प्रोकार्बेजिन, म्यूटोटेन, येलो एस्परजिनेस. तो येलो एस्परजिनेस को आप एंजाइम की कैटेगरी में डाल सकते हो. यू कैन सी एंजाइम्स, है ना, एंजाइम्स एक नया क्लास कर सकते हो, एंजाइम्स, एस्परजिनेस. देन और एक नया क्लास सिस्प्लाटिन का आप बोल सकते हो प्लैटिनम कंपाउंड्स. देन बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर में आता है इंटरफेरॉन, एंड देन एंटीबॉडीज में ये आता है इमिटिनब, अल्फा इमिटिन. हार्मोनल एंटागोनिस्ट एंड देयर मतलब ये सब आएगा आपको, है ना, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, देन एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरॉन्स एंड एरोमेटिक इनहिबिटर, पाई अल्फा रेडक्टेज इनहिबिटर. तो अलग अलग बुक में डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है, एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑल द क्लासिफिकेशन, राइट. तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इसके ऊपर. सो विल सी द इंडिविजुअल ड्रग्स नाउ. आई होप आई एम ऑडिबल टू यू एंड यू आर गेटिंग माय वॉइस क्लियरली, you are able to see the screen and you are getting my points. If yes, please write yes in the comment box. अगर समझ में आ रहा है तो yes लिखिए. So we have seen the classification we have also seen the yesterday. और classification का और एक बार मैं classification जो है ना, when at the, है ना, अभी classification का एक सभी बच्चों के लिए classification का वीडियो सीरीज में YouTube के ऊपर पब्लिकली करने वाला हूँ. मतलब I am going to explain all the classification of the pharmacology, medicinal chemistry in the free videos also. So उसमें भी आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है. So I will not take much time on classification now. Directly we will move to the next part. So those who are new on our channel, for them I would like to explain them. So these sessions, they are the demo sessions for your upcoming GPAT Niper DI 2025-26 batch. So here you are going to get online live lectures. Live lecture will be on your YouTube channel, but initially few lectures will be public, but later on lecture will be on unlisted. So all chapter wise, subject wise lecture will be there. Then study material will be there in 2 books. Okay. Recorded lectures are available in the application, and then online test series is also available in the application. So everything, live lecture, recorded lecture, study material, test series, everything is in a 5,000. And for 4th year student it is valid for 1 year. For 3rd year student this course is valid for 2 years. Okay. And if anybody is interested, they can message me personally. You will get a lot of demo lectures to see. And okay, आपको पसंद आता है, आपको समझता है, तभी ज्वाइन करना है. It is not a forceful. I am not forcing anyone. I don't have a call center to call you thrice or 4 times a day. मैं किसी को कॉल नहीं करता, एक आध बार करता हूँ कि अपडेट लेने के लिए करना है ज्वाइन, क्या हुआ आपका. अदरवाइज अगर एंटरटेन नहीं किया तो मैं लेक्चर मतलब मैं फोन नहीं करता किसी को, ठीक है. आई डोंट लाइक दैट, ठीक है. देन विल सी द नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, अल्कलाइटिंग एजेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट क्लास ऑफ योर एंटी कैंसर ड्रग इज अल्कलाइटिंग एजेंट. First class of your anti-cancer drug is a alkylating agent, and I will explain you alkylating agent, what they do, how they will act as an anti-cancer drug. alkylating agent जो है आपने देखे पूरे, है ना,
अल्कलाइटिंग एजेंट में मस्टर्ड वगैरह जो भी है, साइक्लोफॉस्फेमाइड वगैरह। तो ऑल अल्कलाइटिंग एजेंट हाउ दे विल एक्ट। सो अल्कलाइटिंग एजेंट फर्स्ट टाइम दे वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1917। पहली बार अल्कलाइटिंग एजेंट कब इंट्रोड्यूस हुए थे? फर्स्ट टाइम अल्कलाइटिंग एजेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1917, 1917 में, है ना, ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार। जब सेकंड वर्ल्ड वार हो चुका है उस टाइम पे जो हिटलर था, हिटलर, सो ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, सो नाइट्रोजन मस्टर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल वारफेयर। मतलब सेकंड वर्ल्ड वार में ये केमिकल वारफेयर एज अ यूज किए थे। केमिकल वारफेयर मतलब क्या? तो नॉर्मल वारफेयर में क्या होता है भाई? नॉर्मल लड़ाई में क्या होता है? नॉर्मल लड़ाई में सामने से गोलियां मारते हैं, सामने से तोप मारते हैं, सामने से गोली मारते हैं, है ना, वो हो गया नॉर्मल लड़ाई। लेकिन केमिकल वारफेयर क्या होता है? केमिकल वारफेयर मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कि सामने दुश्मन की टुकड़ी है, सामने दुश्मन की टुकड़ी है, उनको वहां पे ठिकाना है उनका, वहां पे क्या करो, चुपके से जाके जहरीला गैस छोड़ दो। चुपके से जाके जहरीला गैस छोड़ दिया तो वो भी लड़ाई हो गई, लेकिन वो कौन सी हो गई? केमिकल वारफेयर, है ना। बायोलॉजिकल वारफेयर क्या होता है कि बायोलॉजिकल वारफेयर, जैसे अपन इंडिया है, चाइना है, तो अगर चाइना को इंडिया को मतलब खत्म करना है तो चाइना क्या करेगा? कुछ नया वायरस डेवलप करके इंडिया में छोड़ देगा। दैट इज नोन एज अ केमिकल, दैट इज नोन एज अ बायोलॉजिकल वारफेयर। सो वारफेयर तीन टाइप का होता है। ट्रेडिशनल वारफेयर, ट्रेडिशनल वारफेयर में क्या होता है कि आमने सामने लड़ाई होता है, तो सामने वाला गोली चलाएगा दुश्मन, अपन भी गोली चलाएंगे उसके ऊपर, है ना, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वारफेयर। लेकिन अभी वारफेयर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। जैसे हिटलर आया था, हिटलर ने केमिकल वारफेयर लाया था। मतलब हिटलर ने क्या किया? दुश्मन को मारने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया, दुश्मन को मारने के लिए जहरीले गैस का यूज किया। सो अल्कलाइटिंग एजेंट्स व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन द practice, okay, they are first time introduced in 1917 in a chemical warfare, and when they were used, ये जो gases है, ये जो chemicals है, they used to cause a severe vesictation। तो जब ये यूज किए उसमें वारफेयर में, तो उसने क्या किया? so they were causing a this severe vesictation। severe vesictation मतलब क्या? आपको स्किन जो है, आपका स्किन के ऊपर एक्ट होते थे, ओके, एंड दे यूज टू सीवियर वेसिकेशन। सीवियर वेसिकेशन मतलब क्या है? सीवियर वेसिकेशन मतलब व्हेन दे वेर यूज्ड, दे वाज कॉजिंग अ स्किन इरप्शन, दे वाज डैमेजिंग योर स्किन। मतलब आपके स्किन के ऊपर एक ऐसे इन्फ्लेमेशन करेंगे, आपके स्किन के ऊपर ऐसा इन्फ्लेमेशन करेंगे कि जहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ बबल ऑन योर स्किन विद द फ्लूइड एंड देन इन्फ्लेमेशन एंड रिएक्शन। सो आपके स्किन का पूरा डैमेज करता था। कैसे? जैसे ही उस कांटेक्ट में आते थे केमिकल के, तो दे यूज टू डैमेज योर स्किन, दे यूज टू इंड्यूस अ बबल ऑन योर स्किन विद द फ्लूइड एंड इन्फ्लेमेशन एंड रिएक्शन, तो कॉजेज द मेम्ब्रेन इरिटेशन, देन जीआईटी अल्सरेशन एंड माइलोसप्रेशन। तो हिटलर ने क्या किया कि ऐसे गैस यूज किए, जैसे नर्व गैस यूज किया या फिर कुछ अल्कलाइटिंग एजेंट यूज किए, जिसके कारण क्या है? लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दुश्मन के सैनिक कैसे मर गए? कैसे? ड्यू टू सीवियर वेसिकेशन, ड्यू टू जीआईटी अल्सरेशन, मेम्ब्रेन इरिटेशन, है ना, एंड माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन मतलब क्या? माइलोसप्रेशन मतलब सप्रेशन ऑफ योर बोन मैरो। बोन मैरो को सप्रेशन हो गया तो क्या हो जाएगा? बोन मैरो सप्रेस हो गया तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा, और डब्ल्यूबीसी नहीं बना मतलब क्या? इम्यूनिटी खराब हो जाएगा। इम्यूनिटी खराब हो गया मतलब क्या? उसको ऑटोमेटिकली इन्फेक्शन हो जाएगा और मर जाएगा, राइट। सो इन 1917 व्हेन हिटलर वाज देयर ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, तो केमिकल वारफेयर में ये अल्कलाइटिंग एजेंट यूज किए थे, जो क्या करते थे? सीवियर वेसिकेशन, स्किन इन्फ्लेमेशन, स्किन इरिटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन, अल्सरेशन एंड माइलोसप्रेशन, राइट। नाउ what actually they does, what actually ये ड्रग क्या करते हैं, what these drug actually do? So mechanism of action of your alkylating agent, mechanism of action of your alkylating agent, how alkylating agent will act as an anti-cancer drug? So alkylating agent naturally, okay, alkylating agent जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। नॉर्मली alkylating agents are the neutral, they are the neutral compound
but when they come in the alkaline pH, when alkylating agent, when they will come at alkaline pH, they become a very highly reactive quaternary ammonium derivative. तो जब भी alkaline pH में आएंगे तो they generate a one radical, they generate a one radical, they generate a one free radical. Alkylating agent, when they came in contact with the alkaline pH, they generate a one radical, they generate a one radical known as the ethylenium cations. They will generate a cation radical known as the ethylenium cation. ethylenium cation. तो ये जो ड्रग है, when come in contact with the blood, they will generate a cation or free radical known as the ethylenium cation. Now these cations, they will damage the DNA. These cations, they will alkalize. Okay, now these cations, what they will do, these cations, जो cations है, these cations मतलब positive ions, ठीक है. These cations, they cause alkalization. Alkalization of what? These cations, they will cause alkalization. Alkalization of what? Various groups of, है ना. किसके ग्रुप भाई? आपके ग्रुप, मेरे ग्रुप नहीं. आपके जो बॉडी में एंजाइम्स है, आपके जो बॉडी में है ना, so they will enzymes, then nucleic acid, they will be alkalized. They will cause these cations, they will react with the nucleic acid or various enzymes in the body. ये cations react करेंगे, alkalize करेंगे इसको various groups of amino, various groups of protein like amino group, sulfhydryl group, hydroxyl group, phosphate group present in the your body. Physiologically important molecule in the body. Physiologically important molecule कौन से होते हैं आपके बॉडी में? important molecule कौन से? प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, उसके बाद में एंजाइम्स है. सो एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन को ये क्या करेंगे? उसके साथ में रिएक्ट करेंगे. कौन रिएक्ट करेंगे भाई? है ना, समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग? सो दीज अल्कलाइटिंग एजेंट, व्हाट दे विल डू, दे विल जनरेट ए वन cation, free cation radical, which will cause alkalization, which will cause alkalization of your DNA, RNA, which will cause alkylation, which will cause okay destruction of your enzymes. तो आपके न्यूक्लिक एसिड में, एंजाइम्स में, इसके ऊपर ये एक्ट होंगे, राइट. उसके ऊपर एक्ट होने के बाद में क्या होता है? दे विल एक्ट ऑन दीज थिंग्स एंड दैट कॉजेज द okay, and that renders okay after the alkylation. Now normally जो enzymes होते हैं वो normal होते हैं, but after alkylation these enzymes will become inactive, unavailable for normal metabolic reaction. So after alkylation of nucleic acid, after alkylation of your enzymes, ये enzymes, nucleic acid क्या हो गए? डैमेज हो जाएंगे. They will not remain normal. Now abnormal things, they are useless to your body. So these will affect the metabolism and you may die. Okay, so cell will die. जैसे एक सेल के ऊपर देखो ना, एक सेल में अगर अल्कलाइटिंग एजेंट जाता है तो वहाँ पे जो भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स लगते हैं, जो भी न्यूक्लिक एसिड लगता है, जो भी फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लगते हैं, उसको क्या करेंगे? अल्कलाइज करेंगे. एंड दे विल रेंडर दिस मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव एंड दे विल नॉट बी अवेलेबल फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. सो दैट्स हाउ सेल विल कॉज सेल डेथ. दैट विल लीड्स टू सेल डेथ. So they may be either, now these alkylating agent may be either di or polyfunctional. Now alkylating agent may be either di or polyfunctional. मतलब ये एक है ना, di or polyfunctional मतलब क्या? So they can alkalize at a one site only or they can alkalize at a multi-site only, multi-site also. So number of functional group alkylated. So depending upon the number of functional group alkylated, they can be classified as a poly or difunctional alkylating agents. है ना. तो कोई द डेथ मैक्लोरेथमाइन, तो आपका सेल डेथ होता है, राइट. तो दे है ना, so what they basically do is alkylating agent, they will cause alkylation of physiologically important molecules, है ना. जैसे आपका डीएनए हो गया, कोई एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, राइट. सो मोस्टली दे विल बाइंड एट अ सल्फाइड्रिल और हाइड्रोक्सिल और फॉस्फेट ग्रुप और अमीनो ग्रुप ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, proteins, enzymes, nucleic acids, right. Now as alkylating agents, है ना, as alkylating agents are nucleophilic, so they are the nucleophilic in nature, they will react with the nucleic acid bases, है ना. ये alkylating agent nucleic acid से react होते हैं, मतलब क्या? DNA से react होंगे. So particularly they will bind to the 7th position of guanosine and inhibit the DNA synthesis. Also causes the cross linking of DNA strand in the double helical DNA, and that result into okay
result into faulty cell or faulty DNA. So also cause the cross linking of DNA strand in the resting as well as dividing cell. जो सेल ग्रो हो रहे हैं वहाँ पे भी क्रॉस लिंकिंग करता है, जो सेल रेस्टिंग में है उसको भी क्रॉस लिंक कर रहा है. दस देयरफॉर दे इंटरफेयर विद द सेल रेप्लिकेशन, है ना, सेल रेप्लिकेशन में इंटरफेयर करते हैं. मतलब बेसिकली दे डैमेज करते हैं डीएनए को. दे विल डैमेज द इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इन द सेल लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स. Then they will also damage the DNA, and that's why there is no cell replication, there is no cell division. That's how cancer cell will not get cell divided. So cancer है वो बढ़ेगा नहीं, and because of the faulty DNA synthesis, because of the damage to your internal important physiological molecules like proteins, enzymes, तो cell में metabolism नहीं होगा, cell automatically die हो जाए, cell will die. That's how they will act. So alkylating agent basically they causes the alkylation. They are the they produce a positive radical which react with the proteins, enzymes and important cell component, preventing the cell metabolism. And they also bind with the DNA, RNA, and they will prevent the cross linking of DNA and prevent the cell division, right? So that's how alkylating agent will act, right? So I think, I hope I am audible and you are getting my points. तो देखो उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ दीज ड्रग्स. बेसिकली व्हाट एंड ओके अल्कलाइटिंग एजेंट विल डू. तो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट, तो पहला क्या है, पहला एक्शन है साइटोटॉक्सिसिटी. सो अल्कलाइटिंग एजेंट एक्ट एज अ साइटोटॉक्सिक. तो अल्कलाइटिंग एजेंट जो है मेक्लोरेटामाइन, है ना, जितने भी आपने देखा है, साइक्लोफॉस्फामाइड, सो दे आर अ साइटोटॉक्सिटी. साइटोटॉक्सिटी मतलब क्या है, सेल को किल करेगा. Cytotoxicity मतलब toxicity to the cells. So they can damage growingly nuclei as well as multiplying cell. So they can damage to the multiplying cell. They can damage to the growing nuclei मतलब they can damage the multiplying cell. जहाँ पे सेल ग्रोथ हो रहा है एक्टिवली, मतलब कैंसर में सेल ग्रोथ होता है ना एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर देयर. So they will damage the multiplying cells. They are damage the actively dividing and multiplying cells. बट नॉर्मली भी होता है. तो नॉर्मली कहाँ पे होता है, आपके बोन मैरो में होता है. तो दैट्स व्हाई दे विल किल द कैंसर सेल, नो डाउट, बट दे विल आल्सो डैमेज द हेमाटोपोएटिक सिस्टम मतलब बोन मैरो, ओके, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. एंड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आर आल्सो अफेक्टेड. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ देयरफॉर दे विल हैव अ एडवर्स इफेक्ट. दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द अल्कलाइटिंग एजेंट दे विल हैव एडवर्स इफेक्ट लाइक ल्यूकोपेनिया. ल्यूकोपेनिया क्यों होगा, बिकॉज बोन मैरो को सप्रेस करेगा, बोन मैरो को किल करेगा एंड डब्ल्यूबीसी को किल करेगा. सो ल्यूकोपेनिया में डिक्रीज इन द डब्ल्यूबीसी. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब क्या है, डिक्रीज इन द प्लेटलेट्स. तो प्लेटलेट को भी, बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. तो आरबीसी को किल करेगा तो क्या होगा, आरबीसी किल करेगा तो एनीमिया हो जाएगा. तो किलिंग ऑफ आरबीसी लीड्स टू एनीमिया, किलिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी लीड्स टू ल्यूकोपेनिया, किलिंग ऑफ thrombocyte leads to thrombocytopenia, right? तो है ना, एनीमिया क्यों, आरबीसी को किल करेगा तो एनीमिया होगा. ल्यूकोपेनिया क्यों होगा, डब्ल्यूबीसी को किल करेगा तो वहाँ पे ना आरबीसी की वजह से एनीमिया करेगा, डब्ल्यूबीसी की वजह से क्या करेगा, ल्यूकोपेनिया करेगा. एंड प्लेटलेट की वजह से क्या करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. तो अल्कलाइटिंग एजेंट दे विल bind to a cancerous cell, they will inhibit the metabolism of cancerous cell because of the binding with the important physiological molecules, and also causes the cross linking of DNA, also prevent the replication of cell. That's how. And they will also has a adverse effect because they act on a rapidly multiplying cells. तो alkylating agent कहाँ पे act होते हैं, rapidly multiplying cell as well as normal growth cell, ठीक है. बिकॉज ऑफ दैट दे हैव एडवर्स इफेक्ट. एडवर्स इफेक्ट कौन से, जैसे बोन मैरो के ऊपर ए प्लास्टिक एनीमिया होगा, ल्यूकोपेनिया होगा, है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, है ना, एंड आल्सो कॉज द ए प्लास्टिक ऑफ बोन मैरो, बोन ना ए प्लास्टिक एनीमिया करेगा. इपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या करेगा, सो इपिथेलियल टिश्यू सच एज अ कॉर्निया ऑफ योर आईज, इंटेस्टिनल म्यूकोजा, सो दे विल बी आल्सो अफेक्टेड. तो इनके ऊपर भी ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा. सो इट विल कॉज अल्सरेशन, एज अ एडवर्स इफेक्ट. तो पूरे स्किन के ऊपर अल्सरेशन करेगा, जीआईटी का अल्सरेशन करेगा, है ना, गैस्ट्राइटिस करेगा, डायरिया करेगा, राइट.
देन आल्सो एक्टिव डिवाइडिंग सेल कहाँ पे होते हैं? आपके हेयर में. तो हेयर फॉलिकल विल आल्सो बी डैमेज्ड. तो दे विल डैमेज द हेयर फॉलिकल एंड लीड्स टू एलोपेसिया. तो एलोपेसिया करेगा, आपको टकला बन देगा, है ना. आप कितने अच्छे दिखोगे आप अगर टकले बन गए तो, है ना. आप अगर टकले बन गए तो कितने अच्छे दिखोगे, है ना. दैट्स व्हाई एंटी कैंसर ड्रग दे आल्सो एक्ट ऑन अ हेयर फॉलिकल, दैट्स व्हाई कॉल्ड एलोपेसिया. सो दे डैमेज द फॉलिकल्स ऑफ हेयर फॉलिकल डैमेज. देन इन द मेल्स में क्या होता है कि स्पर्म्स बनते रहते हैं. सो spermatogenesis is a continuous process, so they will also inhibit the spermatogenesis. That's why they can produce impotence in the male. So spermatogenesis, they are inhibited irreversibly. Spermatogenesis is inhibited by these alkylating agent. Alkylating agent will damage your testicles. Then in the females they can cause amenorrhea. Amenorrhea मतलब क्या? Unnecessary bleeding. And अगर प्रेग्नेंट वुमन है तो फिटोटॉक्सिटी, है ना, means they will cause the death of fetus. So they are all are the teratogenic in nature. They are the all they are the teratogenic in nature. All anti-cancer drugs are the teratogenic in nature, right? तो ये epithelial tissue के ऊपर इसका एक्शन है. So they will exert a cytotoxicity. They have action on epithelial tissue. Then all these are the immunosuppressant. ये immunosuppressant क्यों है? All cytotoxic drug or all alkylating agent are the immunosuppressant. क्यों? Because they suppresses the your bone marrow. Bone marrow को suppress करेंगे तो WBC नहीं बनेगा. WBC क्या है? WBC are nothing but the immunocell. They act as an immunosuppressant by suppressing the antibody production. WBC है ना, एंटीजन है ना, एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, है ना, वो सब है ना, मैक्रोसाइट, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या है? WBC के टाइप्स है. So by inhibiting the bone marrow, they will suppress the production of WBC, like your leukocytes, like your neutrophils, basophil, eosinophil, and also thrombocytes, and also they will inhibit the production of monocytes and lymphocytes. Because of that, they will cause immunosuppression. तो मोस्टली जो एंटी कैंसर ड्रग का थेरेपी करने के बाद में क्या होता है? उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है. देन मिसलेनियस एक्शन. मिसलेनियस एक्शन क्या है? So alkylating agent can cause nausea, vomiting, diarrhea. वो तो अपना common है. Nausea, vomiting. Then they have, okay, in a high dose, these alkylating agent in a high dose they can stimulate your CNS. In a high dose they can cause stimulation of CNS. So that's why vomiting and finally they can cause death, है ना, right? तो जिसका भी कीमोथेरेपी हो गया तो वो बाद में मरता ही मरता है. कीमोथेरेपी क्या करता है? कैंसर से बचाता नहीं है. Chemotherapy cannot survive you from the cancer. Chemotherapy or anti-cancer drug, they will not survive you from cancer, but what will they do? They will increase your life. बस अगर आप आज मरने वाले हो कैंसर से तो कीमोथेरेपी देने के बाद में 2 महीने के बाद मरोगे. So anti-cancer drug, they only increases the life of patient. Anti-cancer drug only increases the life of patient. They will not save the patient. They will not save the patient. Death is a permanent, है ना. डेथ आने वाला है, सबको, सब मरने वाले हैं, बस टाइम है ना. कोई लोग अभी मरने वाले हैं, कोई लोग बाद में मरने वाले. जैसे मेरा भी डेथ फिक्स है, आपका भी डेथ फिक्स है. यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं होने वाला है लाइफ टाइम, है ना. तो जिसको कैंसर है उसको कीमोथेरेपी दिया है, सो एंटी कैंसर ड्रग यूज किया है, तो बस एंटी कैंसर ड्रग विल इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेशेंट. दैट्स इट. दे विल नॉट रिलीव द डिसीज. दे विल नॉट इरेडिकेट डिसीज, है ना. जैसे एंटीबायोटिक है, अगर आपको मलेरिया हुआ है तो एंटीबायोटिक यूज करके, एंटी मलेरिया ड्रग यूज करके मलेरिया के पूरे सेल्स मार देंगे, मतलब मलेरिया का पैरासाइट मर जाएगा, तो इरेडिकेशन हो गया. दैट इज नथिंग बट द इरेडिकेशन ऑफ डिसीज. बट एंटी कैंसर ड्रग्स, दे विल नॉट इरेडिकेट योर कैंसर. What they will do? They will just increase your self life. They will just increase your life. So all alkylating agent, they are a radiomimetic. मतलब radiomimetic मतलब क्या? Alkylating agent, they will act as a radiations. जो ड्रग है ना, radiomimetic मतलब क्या? रेडियोएक्टिव आइसोटोप क्या करते हैं? रेडिएशंस करते हैं. So alkylating agents also they are like a radiomimetic, and that's why they will cause, है ना, like because their action like a ionizing radiation. Ionizing radiation जो अल्फा रेज, बीटा रेज. सो सेम अल्कलाइटिंग एजेंट रेडिएशन का और अल्कलाइटिंग एजेंट का
तो रेडिएशन का एक्शन और अल्कोलाइटिंग एजेंट का एक्शन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज रेडियोमाइमेटिक. नेक्स्ट पार्ट विल सी, है ना, नेक्स्ट पार्ट विल सी. तो विल सी द इंडिविजुअल ड्रग्स. इंडिविजुअल ड्रग्स क्या है फ्रॉम फार्माकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन अ शॉर्ट. आपको ये सब पढ़ने, ये सब लेक्चर करने के बाद में रेफरेंस बुक में से पढ़ने जाओगे ना, जब मेरा लेक्चर करेंगे, जब रेफरेंस बुक पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में आएगा यार ये तो मुझे मालूम है, वो तो मुझे मालूम है, ये भी मैंने पढ़ा है. तो दैट इज द मैजिक ऑफ माई लेक्चर, दैट इज द मैजिक. बिकॉज यहाँ पे पूरे इसेंस, पूरे 4-5 बुक रेफर करके मैंने कंटेंट बना के आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट. तो अल्कलाइटिंग एजेंट, इंडिविजुअल अल्कलाइटिंग एजेंट, फर्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द मेक्लोरिथामाइन. First drug is nothing but the meclorethamine. So meclorethamine. So if you want to read in the detail, you can read from book, but इससे ज़्यादा डिटेल किसी बुक में दिया नहीं, right? So meclorethamine, it is a alkylating drug. So in a water, when you make a solution of meclorethamine in a water, it will rapidly undergo chemical transformation within a minute, and hence it is given by intravenous route. ये इंट्रावेनस रूट से ही दिया जाता है मेक्लोरिथामाइन. क्यों? बिकॉज अगर इसका वाटर में सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म होता है जल्दी, तो इट विल अंडरगो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द वाटर, एंड दैट्स व्हाई द फ्रेश सॉल्यूशन इज मेड एंड इट इज इंजेक्टेड बाय इंट्रावेनस रूट, राइट. तो इसमें एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बाकी पॉइंट भी है कि रेडी एब्सॉर्ब, एलिमिनेटेड, मेटाबॉलिज्म, बट दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर GPAT Niper DI Pharmacist. So these things are very very important for GPAT Niper DI Pharmacist. Remember. चलो एडवर्स इफेक्ट क्या है? मेक्लोरेथामाइन विल कॉज, इट इज अ हाईली टॉक्सिक ड्रग. ये टॉक्सिक ड्रग है. इट विल कॉज एनोरेक्सिया. एनोरेक्सिया मतलब भूख ना लगना, आपका भूख मर जाएगा. सीवियर नोशिया एंड वोमिटिंग, ये नोशिया वोमिटिंग करेगा. देयरफॉर इट इज गिवन एट अ बेड टाइम. ये रात में दिया जाता है. मेक्लोरेथामाइन इज गिवन एट अ बेड टाइम बिकॉज इट इज अ टॉक्सिक ड्रग. इट कैन कॉज एनोरेक्सिया, नोशिया, वोमिटिंग. दैट्स व्हाई इट कैन कॉज सीवियर बोन मैरो सप्रेशन. तो सीवियर बोन मैरो सप्रेशन करेगा मतलब क्या करेगा? तो बोन मैरो सप्रेस होगा तो आरबीसी नहीं बनेगा, एनीमिया होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगा, ल्यूकोपेनिया होगा, प्लेटलेट नहीं बनेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, एंड इम्यूनिटी डिक्रीज होगा क्योंकि लिम्फोसाइट मोनोसाइट नहीं बनेगी, एंड इट कैन कॉज डेथ ऑफ सेल. डेथ ऑफ सेल, आपके सेल का डेथ होगा. अगर कुछ सेल मरेंगे तो आप जिंदा रहोगे, लेकिन सारे सेल मर गए तो आप भी मर जाओगे ना भाई, राइट. तो इट इज यूज्ड इन द हॉडकिंस डिसीज. हॉडकिंस डिसीज क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ लिम्फेटिक कैंसर. लिम्फोमा होता है. इट इज अ हॉडकिंस डिसीज. लिम्फोमा एंड अदर cancers, other malignancies. Because of its toxicity is replaced by other drugs. Nowadays it is no more used क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है, and that's why ये ड्रग रिप्लेस हो चुका है. किससे भाई? लो न्यू ड्रग्स लाइक लोमस्टिन एंड कार्मस्टिन. लोमस्टिन दे आर रिप्लेस्ड मेक्लोरेथामाइन. ठीक है, तो कार्मस्टिन, लोमस्टिन है ना. देन इस्ट्रामस्टिन ये ड्रग खतरनाक है. देखो इस्ट्रामस्टिन क्या है? इसमें दो ड्रग है. इस्ट्रा मतलब इस्ट्रोजन, इस्ट्रामस्टिन मतलब है इस्ट्रा मतलब इस्ट्रोजन एंड मस्टिन मतलब कार्मस्टिन. तो कार्म है ना, इस्ट्रामस्टिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड कार्मस्टिन. सो ये इस्ट्रामस्टिन इट इज अ स्पेसिफिक ड्रग डिजाइन टू डिलीवर द मस्टिन टू एस्ट्रोजन रिसेप्टर. तो जिसमें भी जो भी कैंसर एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं उसमें इस्ट्रामस्टिन यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेट कैंसर, used in the prostate cancer. So very important. I hope I am audible to you and you are clearly able to see the screen. समझ में आ रहा है आपको? सेकंड ड्रग देख लेते. चलो सेकंड ड्रग खतरनाक है, एक नंबर है. ऐसे ही अपन सेशन लेने वाले हैं जीपैट के लिए. एंड राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस वे. ओनली केमिस्ट्री इज टेकन बाय अनदर टीचर. साइक्लोफॉस्फेमाइड, देखो क्या नाम है इसका, साइक्लोफॉस्फेमाइड. इसके ऊपर कम से कम 4 बार क्वेश्चन आ चुका है. कम से कम 4 बार जीपैट में क्वेश्चन आ चुका है. और नाइपर में इट इज वन ऑफ द फेवरेट ड्रग फॉर एग्जामिनर. साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्या नाम है भाई? साइक्लोफॉस्फेमाइड, खतरनाक. सो साइक्लोफॉस्फेमाइड इट इज अ फॉस्फोरस इन अ फॉस्फोरामाइड मस्टर्ड. इट इज गिवन बाय पेरेंटल रूट. इट इज आल्सो गिवन बाय पेरेंटल रूट एंड आल्सो गिवन बाय ओरल रूट, है ना. व्हाट इज इट? देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ प्रोड्रग. साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ प्रोड्रग. क्या है साइक्लोफॉस्फेमाइड? इट इज अ प्रोड्रग. प्रोड्रग मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोड्रग? प्रोड्रग्स आर द ड्रग व्हिच आर इनएक्टिव एज सच बट दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म आफ्टर द मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी. मतलब प्रोड्रग क्या है?
इनएक्टिव ड्रग है, क्या है, इनएक्टिव ड्रग है, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव ड्रग as such is inactive, but when it is given to patient, ये बॉडी में जाके क्या है, मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या है, एक्टिव ड्रग बनता है। तो आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव ड्रग। इनएक्टिव ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी कन्वर्ट टू एक्टिव ड्रग, इट इज नोन एज अ प्रोड्रग, है ना। प्रोडक्ट्स बहुत सारे, फॉर एग्जांपल लीवोडोपा, लीवोडोपा क्या है, इज अ प्रोड्रग ऑफ डोपामाइन, है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स, जैसे आपका है ना, आपका सब फेनास्टिन, फेनास्टिन इज कन्वर्टेड इनटू पैरास्टामोल इन द बॉडी, फेनास्टिन इज अ प्रोड्रग, ठीक है। चलो ठीक है, साइक्लोफॉस्फेमाइड इज गिवन बाय ओरल रूट एज वेल एज पेरेंटल रूट, एंड बिलीव मी इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2023 में, जो मैंने जीपैट 23 में क्वेश्चन आ चुका है, मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। सो एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स दैट हैज बीन आस्क्ड इन द जीपैट एग्जाम, कम से कम 4-5, है ना, 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो देखो, है ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड, सो इट इज गिवन बाय ओरल रूट, पेरेंटल रूट, इट इज अ प्रोड्रग, ठीक है। इन द लीवर इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, इट इज इन द लीवर, इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट known as a active metabolite known as a aldophosphamide। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है ना। aldophosphamide is active metabolite of cyclophosphamide, तो aldophosphamide is active metabolite of cyclophosphamide, क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है। so cyclophosphamide is a product converted into liver into aldophosphamide, and one more metabolite is there, उसका और एक मेटाबोलाइट होता है known as a hydroxyphosphamide, hydroxyphosphamide and aldophosphamide। Cyclophosphamide is converted into active metabolite known as a hydroxyphosphamide and aldophosphamide। तो ये दो एक्टिव मेटाबोलाइट है, बट इन द लीवर ये ड्रग जो है ना और भी कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है। सो इन द लीवर इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट aldophosphamide and hydroxyphosphamide, so they will act as an anti-cancer। so cyclophosphamide is inactive itself, but ये converted into this active metabolite and they are the active forms, right, ठीक है, ठीक है। तो एडवर्स रिएक्शन क्या है, इसके एडवर्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है जीपैट 2024 में। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट नोन एज हेमोरेजिक सिस्टाइसिस, ठीक है, मतलब क्या, तो इन द ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट नोन एज अ हेमोरेजिक सिस्टाइसिस। So cyclophosphamide is very important adverse effect, hemorrhagic cystitis, ये जो है hemorrhagic cystitis। तो what is mean by hemorrhagic cystitis? hemorrhagic cystitis मतलब क्या, कि आपकी जो किडनी है, किडनी में जो ट्यूबुल्स है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स है, किडनी में जो नेफ्रॉन्स है उसको डैमेज करेगा। so it will cause damage to the kidney, it will damage to the your nephron known as a hemorrhagic cystitis, वहां से ब्लीडिंग करेगा, वहां पे इंफ्लेमेशन करेगा, वहां से ब्लीडिंग करेगा, that is known as a hemorrhagic cystitis। so cyclophosphamide in the liver it causes the liver damage also, मतलब liver toxicity है इसको, also causes the chemical cystitis, chemical cystitis मतलब वही hemorrhagic cystitis, and toxicity to the kidney, this is a kidney toxic, urinary system को, है ना, toxicity to the epithelium of urinary system, okay, because of its metabolite arecolin, because of its metabolite arecolin। तो देखो cyclophosphamide will cause hemorrhagic cystitis, cyclophosphamide will cause hemorrhagic cystitis, यहाँ पे देखो HC। hemorrhagic cystitis, why? it is converted into active metabolite arecolin, okay, it is converted to active metabolite aldophosphamide and hydroxyphosphamide, but during the conversion of cyclophosphamide, ये साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है, प्रोड्रग है ना, ये क्या है, प्रोड्रग है, ये कन्वर्ट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट में, aldophosphamide में और हाइड्रोक्सीफॉस्फेमाइड में। बट ड्यूरिंग द कन्वर्जन, व्हेन साइक्लोफॉस्फेमाइड इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन देयर इज आल्सो जनरेशन ऑफ वन टॉक्सिक मेटाबोलाइट, वहां पे एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है और उसका नाम है बेंडी एरेकोलिन, उसका नाम क्या है भाई, बेरिक एरेकोलिन। सो एरेकोलिन इज अ टॉक्सिक मेटाबोलाइट। So during the conversion of cyclophosphamide into active metabolite, aldophosphamide or aldophosphamide, so arecolin metabolite is generated। कौन सा मेटाबोलाइट जनरेटेड, arecolin।
So this arecoline metabolite is very important. This arecoline metabolite is toxic and it causes the hemorrhagic cystitis. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, hemorrhagic cystitis caused by cyclophosphamide is due to, तो एग्जाम उसका आंसर है एरेकोलिन, ठीक है, राइट ना, एरेकोलिन है, एक्रोलिन, सॉरी एक्रोलिन. So acrolein is the toxic metabolite produced by cyclophosphamide that causes damages to the kidney and that causes the hemorrhagic cystitis. And अगर ये hemorrhagic cystitis करता है तो फिर इसका प्रिवेंट कैसे करने का? So there is one chemical known as a mesna. There is one chemical known as a mesna. So it is known as a antidote. It is known as a mesna is nothing but the, तो mesna क्या है? Mesna is nothing but the मार्केप्टोइथेन सोडियम सल्फोनिक एसिड, है ना. यहाँ पे देखो मेसना, मेसना मतलब यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेसना, है ना, मेसना. I will draw here mesna. Mesna means what? This is markup-to-ethane sulfonic acid of sodium, sulfonic acid. Mes, ini. Mesna is nothing but it is an antidote when cyclophosphamide will cause a hemorrhagic cystitis. So at that time we have to use mesna. Mesna क्या है भाई? M for, है ना, M for remember M for markapto, M for markapto मतलब Esic group and E for markaptoethane sodium salt of sulfonic acid, markaptoethane sodium salt of sulfonic acid, markaptoethane sodium salt of sulfonic acid. It is known as a mesna. Mesna is a antidote. Mesna is a compound which can be used to prevent the hemorrhagic cystitis. और इसके ऊपर GPAT 2024 में क्वेश्चन आ चुका, GPAT 2023. So hemorrhagic cystitis caused by cyclophosphamide because of the toxic metabolite known as acrolein. Acrolein is a toxic metabolite which causes the hemorrhagic cystitis. You know, hemorrhagic cystitis caused by cyclophosphamide is due to the acrolein, that is a toxic metabolite which causes the hemorrhagic cystitis. Right now, that can be prevented. So hemorrhagic cystitis caused by acrolein of your cyclophosphamide, that is prevented by using mesna. Markup-to-ethane सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. खतरनाक, ये किसी ने आपको बोला नहीं होगा. कोई भी लेक्चर जाके देख लो, कोई भी क्लासेस में जाके देख लो, अगर किसी ने बोला होगा ना तो कल से ही बंद कर दो भाई, क्योंकि खतरनाक है ना. मतलब अपन चैलेंज खतरनाक करते हैं, अपन है ना किसी का इंटरव्यू नहीं दिखाते. अपना काम है पढ़ाना भाई, पढ़ाना बच्चों को, बच्चों का भला हो जाए उसके लिए. बच्चों ने अगर कोई नाइपर में जाके पढ़ता है तो उसका मुझे इतना फीलिंग आता है कि यार वो पढ़ गया मतलब मैं पढ़ गया. मेसना इज अ सल्फर and hydrogen compound it is a markup-to-ethane sulfonic acid salt of sodium which react with the toxic metabolite and prevent the hemorrhagic cystitis. चलो उसका यूज क्या है देखो. cyclophosphamide is used as a multi-drug, है ना, multi-drug regimen. cyclophosphamide is used as a multi-drug regimen for various type of cancer, है ना. various type of cancer कौन सा भाई? फॉर एग्जांपल chronic lymphocytic leukemia, CML, chronic lymphocytic leukemia, CL, then lymphoma, then solid tumors, then it is also used as an immunosuppressive agent. So cyclophosphamide is immunosuppressant. Patient on the therapy of cyclophosphamide is advised to take a plenty of liquids, है ना. Patient who is receiving cyclophosphamide, अगर कोई कैंसर का पेशेंट है उसको cyclophosphamide दे रहे तो उसको एडवाइस किया जाता है प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स बिकॉज ऑफ द हेमोरेजिक सिस्टेसिस. सो साइक्लोफॉस्फेमाइड में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. साइक्लोफॉस्फेमाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ अल्कलाइटिंग एजेंट. इट इज कन्वर्टेड टू ए एक्टिव मेटाबोलाइट अल्डोफॉस्फेमाइड एंड हाइड्रोक्सीफॉस्फेमाइड, बट ड्यूरिंग दैट कन्वर्जन
Also there is a generation of one toxic metabolite known as acryloid. Toxic metabolite known as acryloid. Now this toxic metabolite causes the hemorrhagic cystitis. Hemorrhagic cystitis means what? So it is a inflammation and damage to the kidney tubules, right? It is also liver toxic. ये drug liver toxicity भी देता है, and that's why to prevent the hemorrhagic cystitis caused by cyclophosphamide, there is one drug known as a mesna. Mesna क्या है? It is known as a mercaptoethane sodium salt of sulfonic acid, right? So it is used in the multi-drug resistance cancer. जो रेजिस्टेंस कैंसर है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस कैंसर, उसमें यूज करता है, किया जाता है. क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया एंड आल्सो सॉलिड ट्यूमर्स also used as an immunosuppressive agent, and patient who are on a treatment of cyclophosphamide, they are advised to take a plenty of liquids because of the hemorrhagic cystitis. खतरनाक. Dot. Finish. So next देखो, चलो नेक्स्ट ड्रग है मेलफलान. नेक्स्ट ड्रग है मेलफलान. So again it is also alkylating agent. It is a well absorbed oralized in the liver, excreted in the kidney. Now it will cause less alopecia than meclorethamine. Meclorethamine से ये कम टॉक्सिक है, and adverse effects are similar to meclorethamine. Meclorethamine के जैसे इसका adverse effect है. Now it is preferred in the treatment of multiple myeloma and breast cancer. ब्रेस्ट कैंसर में यूज किया जाता है मेलफलान. ठीक है. नेक्स्ट ड्रग है क्लोराम्ब्यूसिल. कौन सा ब्यूसिल भाई? क्लोराम्ब्यूसिल. कौन सा ब्यूसिल? क्लोराम्ब्यूसिल है ना. इट इज अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग, याद रखना है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड. क्या है भाई? शॉर्टेस्ट एक्टिंग नाइट्रोजन मस्टर्ड है. एंड इसका भी टॉक्सिसिटी क्या है? एडवर्स इफेक्ट इसका भी क्या है? बोन मैरो सप्रेशन. ये भी एडवर्स इफेक्ट क्या दिखाया है? बोन मैरो सप्रेशन. माइलो सप्रेशन मतलब क्या है? बोन मैरो सप्रेशन है ना. सो ऑब्वियसली इट विल कॉज एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है ना. देन है ना एग्रेनुलोसाइटोसिस, डिक्रीज इन द इम्यूनिटी है ना. सो द माइलो सप्रेशन इज अ डोज डिपेंडेंट. जितना ज्यादा डोज यूज करेंगे उतना ज्यादा माइलो सप्रेशन होगा. दैट कैन बी रिवर्स्ड है ना. माइलो सप्रेशन होगा तो डोज कम करो, ऑटोमेटिक कम हो जाए, एंड इट कैन कॉज एलोपेसिया. इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस. ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया. लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया मतलब लिम्फोसाइट का ब्रेकडाउन होकर ब्लड कैंसर होगा. इन लिम्फोलाइटिक ल्यूकेमिया इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ है ना लिम्फोइडल कैंसर. जितने भी लिम्फोइडल कैंसर है इसमें यूज करेंगे. अदर यूजेस आर द सिमिलर टू साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना. देन नेक्स्ट आता है थायोटेपा. कौन सा टेपा भाई? थायोटेपा. कौन सा टेपा? थायोटेपा. इट इज अगेन हैविंग सिमिलर kinetics with the meclorethamine. Adverse effects are similar to meclorethamine, used in the superficial bladder cancer. इतना ही इंपॉर्टेंट, खतरनाक. डॉट. नेक्स्ट आता है ब्यूसल्फान. कौन सा सल्फान भाई? ब्यूसल्फान. नेक्स्ट ड्रग इज अ ब्यूसल्फान. तो अगेन इट इज इफेक्टिव orally and it is cleared from blood in 2-3 minutes, excreted in the urine as a methane sulfonic acid. तो मीथेन सल्फोनिक एसिड इसका मेटाबोलाइट होता है. मीथेन सल्फोनिक एसिड इज अ मेटाबोलाइट ऑफ ब्यूसल्फान. नाउ इट कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, अम्नोरिया, स्किन पिगमेंटेशन है ना, पिगमेंटेशन रिजम्बलिंग टू एडिसन डिसीज. मतलब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या रहेगा? तो दिस ब्यूसल्फान विल कॉज पिगमेंटेशन. ब्यूसल्फान विल कॉज पिगमेंटेशन, अम्नोरिया. अम्नोरिया मतलब क्या? अननेसेसरी ब्लीडिंग. लेडीज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ब्लीडिंग होता है उसको अपन बोलते है ना, उसको बोलते अननेसेसरी ब्लीडिंग होता है तो अम्नोरिया. डिसमेनोरिया मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग, मतलब कभी होगा कभी नहीं होगा, डिसमेनोरिया है ना, पेन होता है उसमें. एडिसन डिसीज एंड इट कैन कॉज गायनेकोमेस्टिया एंड पल्मोनरी फाइब्रोसिस. पल्मोनरी फाइब्रोसिस मतलब क्या? आपके ट्रकिया ब्रोंकाई में क्या करेगा? फाइब्रोसिस करेगा. So it is largely bound to the nuclear and causes depression of granulocytes and platelet production. ये ना न्यूक्लियोसाइड मतलब decreases the granulocyte and platelet production. ठीक है. नेक्स्ट देखो, it is a drug of choice in case of chronic myeloid leukemia (CML). It is a drug of choice in the chronic myeloid leukemia. क्वेश्चन आ चुका है इसमें. It is a drug of choice in the CML, chronic myeloid leukemia.
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। तो डिस्टिंक्टिव टॉक्सिसिटीज ऑफ अल्कलाइटिंग एजेंट, इंडिविजुअल ड्रग का टॉक्सिसिटी क्या है? तो देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या करता है, साइक्लोफॉस्फेमाइड विल कॉज एलोपेसिया, हेमोरेजिक सिस्टाइसिस एंड वन मोर इंपोर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड कौन सा है भाई? SIADH। SIADH मतलब क्या? यस मतलब सिंड्रोम। यस मतलब क्या भाई? सिंड्रोम। सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट, यस मतलब सिंड्रोम, आई मतलब इन एप्रोप्रिएट, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट अल्डोस्टेरॉन, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट ADH, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट ADH हार्मोन, है ना, ये SIADH। ये साइक्लोफॉस्फेमाइड का एडवर्स इफेक्ट, स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता है व्हाट इज द स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट, तो एलोपेसिया, हेमोरेजिक सिस्टाइसिस, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट अल्डोस्टेरॉन सिक्रेशन और ADH एंटीडायरेटिक करनी, अल्डोस्टेरॉन मतलब सेम ADH। देन है ना आइफॉस्फेमाइड, साइक्लोफॉस्फेमाइड का ही डेरिवेटिव है। मान लीजिए साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है? बड़ा भाई है, साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अ बड़ा भाई, साइक्लोफॉस्फेमाइड बड़ा भाई है, उसका छोटा भाई है फॉस्फोमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड का छोटा भाई कौन है? फॉस्फोमाइड। और आइफॉस्फेमाइड, आइफॉस्फेमाइड आई साइलेंट होता है इसलिए फॉस्फोमाइड, राइट। सो फॉस्फोमाइड आल्सो विल कॉज सेम एडवर्स इफेक्ट, सो हेमोरेजिक सिस्टाइसिस, है ना, सिंड्रोम इन एप्रोप्रिएट अल्डोस्टेरोन सिक्रेशन। देन ब्यूसल्फान का क्या एडवर्स इफेक्ट है? देखो पल्मोनरी फाइब्रोसिस इंपॉर्टेंट, हाइपर पिगमेंटेशन, एड्रेनल इनसफिशिएंसी। प्रोकार्बेजिन इज अल्कलाइटिंग एजेंट, क्या एडवर्स इफेक्ट है इसके? तो सेकेंडरी ल्यूकेमिया, डाइसल्फुरम लेक रिएक्शन, बिहेवियरल चेंजेस, सीनियस डिप्रेशन। सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन क्या है? प्लाटिनम कंपाउंड है, अपन बाद में देखेंगे, बट इसका एडवर्स इफेक्ट इमेसिस, नेफ्रोटॉक्सिटी, पेरिफेरल सेंसरी न्यूरोपैथी एंड ओटोक्स। देखो GPAT 2024 कौन सा एग्जाम भाई? GPAT 2024, 24 में क्या हुआ है? ये हुआ है 24 में, ये हुआ है, क्या हुआ है 24 में? GPAT 24 में ये इसका स्ट्रक्चर पूछा है भाई, जाके पेपर में देख लो। मैक्लोरिथामाइन, तो आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ड्रग, ये स्ट्रक्चर दिया था उन्होंने, और वहाँ पे ऑप्शन में था मैक्लोरिथामाइन, ब्यूसल्फान, ये भी ऑप्शन में था, ब्यूसल्फान, मैक्लोरिथामाइन, और एक है ना, एक सो आंसर वाज अ मैक्लोरिथामाइन। बोलने का मतलब ये कि इसके ऊपर व्हेन विल सी मेडिसिनल केमिस्ट्री एट द टाइम आई विल एक्सप्लेन द आईपैक नेम एंड ओके। सो मैक्लोरिथामाइन का स्ट्रक्चर याद रखना है ना, मैक्लोर, है ना, मे मतलब क्या? मे मतलब मिथाइल, क्लोर मतलब क्या? क्लोरीन, है ना, इथामाइन मतलब क्या है? देखो इथेन, है ना, इथेन है, CH2 है, और ये नाइट्रोजन मतलब CH2CH2N मतलब क्या? इथाइन, इथामाइन, CH2CH2N मतलब इथामाइन, और मे मतलब मिथाइल, क्लो मतलब क्लोरीन, और इथामाइन मतलब इथेनामाइन। तो मैक्लोरिथामाइन का स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं ये शॉर्ट? सर एक बात तो बताओ सर, मैं आपका बहुत इज्जत करता हूँ, ओके थैंक यू, और मेरा रैंक 149 आया है GPAT में, ग्रेट। आप हमेशा, अच्छा तो है ना, आप एक काम करो, पर्सनली मुझे फ़ोन करो, मैं आपको बोलूँगा, ठीक है? यहाँ पे आपका ज्ञान मत दे दो, ठीक है? पर्सनली करो, मैं किसको टारगेट करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं उनके कुत्तों से बात नहीं करता, ठीक है? तो उनके जो है उनसे बात नहीं करता मैं। आपको अगर नहीं पसंद आ रहा तो आते क्यों मेरे चैनल पे, है ना? मैं किसी को टारगेट करूँ ना करूँ, वो आप स्टूडेंट हो ना, तो आप स्टूडेंट का कैरेक्टर निभाओ, आपका काम है, स्टूडेंट है, आपका काम है नॉलेज गेन करना, है ना? कौन किसको क्या बोल रहा है, कौन किसके अगेंस्ट में है, कौन क्या बोलता है, वो आपको क्या करना है ना? वो आपको कुछ नहीं करना है ना? अभी दो नंबर दे दो, अरे नंबर पूरा मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है, नंबर देने का क्या जरूरत है? मेरा नंबर ऑल ओवर इंडिया में है, देने का जरूरत नहीं, मेरा नंबर ऑल ओवर इंडिया में है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखा है नंबर, पूरा यूट्यूब चैनल में नंबर है, पूरा हर एक वीडियो में नंबर है, तो नंबर देने के बाद क्यों कर रहे हो? पूछने का नहीं, डायरेक्टली फोन करो, मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है। सो साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अल्कलाइटिंग एजेंट, क्लोराम्ब्यूसिल इज अल्कलाइटिंग एजेंट, है ना? यहाँ पे देन मेल्फोलान इज अल्कलाइटिंग एजेंट, तो है ना, क्लोराम्ब्यूसिल,
सो ये हो गया अल्कलाइटिंग एजेंट. नेक्स्ट टुमारो विल सी द एंटीमेटोब्रेट. तो शॉर्ट में एक बार देखो आप साइक्लोफॉस्फेमाइड. शॉर्ट में देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, साइक्लोफॉस्फेमाइड. साइक्लोफॉस्फेमाइड मैकेनिज्म है अल्कलाइटिंग एजेंट. ठीक है, तो आप आते जाओ मत, आप आते ही मत जाओ यार, है ना. तो आप आते ही मत जाओ. क्यों आने का, मत आओ आप, है ना. आओ ही मत आप, आओ ही मत, है ना. अगर आप किसी को मेरा पसंद नहीं ना तो उन्होंने चैनल पे आना ही नहीं. सिंपल है. अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो चैनल पे आना नहीं है. मैं किसको क्या बोलता हूँ वो मेरा मैटर है पर्सनल, है ना. अगर आपको इसमें बेनिफिट लग रहा है तो आप लेक्चर में आओ, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो. मैं किसी को बेनिफिट, है ना, उनका क्या वकील, मतलब उनका क्या वकील लेके रखा है क्या आपने? उनका क्यों बोल रहे हो? आप क्या उनके वकील हो क्या? कौन है शॉर्ट वाला, आई डोंट नो, है ना. आपके वकील है उनके? नहीं, ऐसा नहीं करना. आपको पसंद आता है तो आने का, नहीं तो जाओ, मुझे क्या. ये सिर्फ मैंने वकील ही ले रखी है क्या? क्या पैसा दे के भेजा है या बोल के भेजा है ना. मैं क्या करता हूँ, मैं उनको बोलूंगा, किसको क्या बोलूंगा वो मेरा पर्सनल मैटर है. आप पढ़ो, पढ़ने के लिए आ जाओ, पढ़ने का, है ना. तो वो ऑल इंडिया रैंक का इंटरव्यू दिखाया, वो मेरा स्टूडेंट भी है. जिसका रैंक दिखाया ना उसने ऑल इंडिया रैंक 1, वो मेरा भी स्टूडेंट है. उसके कॉलेज में मेरा लेक्चर हुआ है ना. और वहाँ के टीचर ने मुझे पर्सनली बोला है कि सर थैंक यू वेरी मच, और आपके बुक्स की वजह से बहुत सारे बच्चों का रैंक आया. जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया ना बेरा, तो वो मेरा भी स्टूडेंट है. उसमें उसके सक्सेस में मेरा भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. लेकिन उसके जैसे मैं ये नहीं दिखा था कि ऑल इंडिया रैंक 1 आया, उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर उसके इंटरव्यू लेके बहुत सारे एडमिशन करवाएंगे. वो मेरा नेचर नहीं है भाई, ठीक है. तो व्हाट्सअप कर देना भाई, व्हाट्सअप कर दे, लेक्चर लेने दे मुझे. अदरवाइज फालतू में आपके घर वालों के, माँ के, दादा के, बहन के याद करने का चांस मत दे मुझे. आपके घर वालों को याद करने का चांस मत दे. मैं प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है. साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या है, नहीं तो चैनल से निकल जा, है ना. तो है कौन भाई? साइक्लोफॉस्फेमाइड इज अल्कलाइटिंग एजेंट एंड इट अटैक्स द N7 गोनोसाइन ऑफ DNA. ठीक है. तो यूजेस क्या है इसके? नॉन हॉर्किंग्स, ओरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा, ये साइक्लोफॉस्फेमाइड के यूज है. एडवर्स इफेक्ट अपन ने देखा है हेमोरेजिक स्टेसिस. मेसना इज अ ड्रग यूज्ड इन द हेमोरेजिक स्टेसिस. हेमोरेजिक स्टेसिस इज कॉज्ड बाय एरेकोलिन. देन, है ना, सिस्प्लाटिन. नेक्स्ट आता है सिस्प्लाटिन. तो इट इज आल्सो अल्कलाइटिंग एजेंट, कॉजेज द क्रॉस लिंकिंग ऑफ DNA स्ट्रैंड. DNA क्या अटैक करता है? DNA में क्रॉस लिंकिंग करता है. यूज्ड इन द टेस्टिकुलर कैंसर, ओरिन कैंसर, लंग कैंसर, ठीक है, ब्लैडर कैंसर. एंड इसमें भी इसको क्या है? नेफ्रोटॉक्सिटी. सो ये एक एक्चुअली शॉर्ट है, शॉर्ट ओवरऑल पूरा जो अल्कलाइटिंग एजेंट है उसका. सो विल सी इट लेटर ऑन. ये आप देखेंगे लेटर ऑन, कल देखेंगे. तो इफ एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस दे कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स. एंड और एक या 2 लेक्चर, डेमो लेक्चर हो जाएंगे सभी के लिए. बाद में ये डेमो लेक्चर सिर्फ दोज हुए ज्वाइन, जो बाद में जो ज्वाइन किए, मुझे जो बैच ज्वाइन किए उनके लिए ये बाकी लेक्चर रहेगा. एंड ठीक है. तो इसमें सब आपको क्या मिलने वाला है, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन. देखो इसमें आपको GPAT Niper 25-26 ऑनलाइन बैच, राइट. सो इन दिस यू आर गोइंग टू गेट लाइव लेक्चर्स, recorded lectures, daily live lectures, subject wise, chapter wise live lectures, and then study material hard copy, test series also there, only in 5,000 rupees. Okay, if anybody wanted to join, they can join. They can WhatsApp me personally. My number is in my description box also. Thank you very much. So we'll see the remaining points tomorrow, and I hope you have understood. ठीक है. अभी 8:30 बजे, 1.5 घंटा हो चुका है. तो we'll take remaining point tomorrow. यहाँ पे ना कमेंट करके, यहाँ पे उनके एजेंट बन के नहीं आना है. अगर मेरे लेक्चर में आना है तो JDC के एजेंट बन के नहीं आना है, ठीक है. JDC के एजेंट बन के नहीं आना है मुझे, है ना. तो उन्होंने क्या पैसे दे के भेजा है क्या? उन्होंने पैसे दे के भेजा होगा शायद, है ना. आपको